بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم اسٹوڈینٹس۔ چیپٹر نمبر 11 کا لاسٹ ٹاپک آج ہمارے سامنے ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے الٹرا ساؤنڈ۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے گزشتہ لیکچر میں ہم نے آڈیبل فریکوینسی رینج کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسانی کان جن آوازوں کو سینس یا رسپونس کر سکتے ہیں، ان آوازوں کی فریکوینسی کے لیے ایک رینج ہوتی ہے۔ اس رینج سے باہر اگر کوئی آواز ہوگی یا اس کی فریکوینسی ہوگی تو ہمارے کان اس کو سننے سے، اس کو رسپونس کرنے سے قاصر ہوں گے۔ اور وہ رینج ہم نے پڑھی تھی 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک، یعنی کم از کم 20 ہرٹز فریکوینسی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 20,000 ہرٹز ہونی چاہیے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسی آوازیں جن کی فریکوینسی ہماری آڈیبل رینج سے باہر ہوگی، یعنی 20 ہرٹز سے کم یا 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہوگی، ایسی آوازیں ہمارے لیے قابل سماعت نہیں ہوں گی۔ ہم ان آوازوں کو سائلنٹ ساؤنڈ کا نام دے سکتے ہیں، یعنی خاموش آوازیں، کیونکہ یہ آوازیں تو ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دے رہی، لہٰذا ہمارے لیے وہ خاموش آوازیں کہلائیں گی۔ اسٹوڈینٹس، الٹرا ساؤنڈ ایسی آوازوں کو کہا جاتا ہے جن کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو 20,000 ہرٹز سے زیادہ دفعہ ایک سیکنڈ میں وائبریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً ایسی آوازیں ہمارے لیے سینسیبل نہیں ہوتی، ہمارے لیے قابل سماعت تو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے، 20,000 ہرٹز سے بھی کافی اوپر ہے، اس لیے ان میں ایک بڑی مقدار انرجی کی موجود ہوتی ہے۔ یہ کافی انرجیٹک ویوز ہوتی ہیں، آواز کی ویوز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جن آوازوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہے اس کو تو الٹرا ساؤنڈ کہا جا رہا ہے، لیکن جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہے وہ بھی ہماری آڈیبل رینج سے تو باہر ہی ہیں، ان کا بھی ایک نام ہے، ان کو بولا جاتا ہے انفرا ساؤنڈز۔ ان کا نام انفرا ساؤنڈز رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الٹرا ساؤنڈ پہ بیس کرتا ہے۔ آج ہم الٹرا ساؤنڈ پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ اتنی زیادہ فریکوینسی ہونے کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ میں کافی زیادہ انرجی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ کافی ہائی سپیڈ کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے جو ریلیشن پڑھا ہوا ہے فرسٹ چیپٹر میں، V is equal to F lambda، V is equal to F lambda، تو اس ریلیشن کے مطابق جتنی فریکوینسی زیادہ ہوگی اتنی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی۔ چونکہ ان کی فریکوینسی کافی زیادہ ہے، 20,000 ہرٹز سے بھی زیادہ ہے، اس لیے ان کی سپیڈ بھی اسی حوالے سے بہت زیادہ ہوگی۔ They can travel with a high speed۔ اس کے علاوہ اگر ان کی ویو لینتھ کی بات کی جائے اسٹوڈینٹس، تو ان کی ویو لینتھ بہت شارٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی فارمولے کی بات کر لیں تو یہاں سے ہمارے پاس فریکوینسی کے لیے جو ایکویشن بنتی ہے وہ بنتی ہے F is equal to V divided by lambda۔ اٹس مین دیٹ کہ ایسی آوازیں جن کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوگی ان کی ویو لینتھ کم ہوگی، کیونکہ فریکوینسی اور ویو لینتھ انورس پروپورشن ہے اکارڈنگ ٹو دس ایکویشن۔ تو فریکوینسی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ویو لینتھ کم ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ کچھ فیچرز تھے الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے جو کہ آپ نے یہاں پہ ڈسکس کیے۔
इनको हमने ज़हन में रखना है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। यानी अल्ट्रासाउंड हमारी डेली लाइफ में हमारे किस काम आती है। स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड को इंसान सुन तो नहीं सकता, उसको रिस्पॉन्स तो नहीं कर सकता, लेकिन आज साइंस ने हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हमारे लिए लेके आए, कुछ ऐसी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि जिनकी मदद से हम अल्ट्रासाउंड से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, इनको भी अपने काम में ला सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे मेडिकल डायग्नोसिस में, यानी मेडिकल की वो फील्ड जिसमें हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रेस करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं या उनको डायग्नोस करते हैं, उनकी तशखीस करते हैं। तो मेडिकल डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जिस तरह एक्सरे के ज़रिए से आप इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को देख सकते हैं, उनका इमेज एक शीट के ऊपर हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आज अल्ट्रासाउंड की मदद से भी हम इंसान की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को इजीली स्केच की शक्ल में, एक इमेज की शक्ल में देख सकते हैं। दरअसल होता यह है कि जब अल्ट्रासाउंड को इंसानी बॉडी के ऊपर एक्सपोज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड इंसानी जिस्म में दाखिल होती हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जो वेव लेंथ है वो बहुत कम है। अभी जैसा आपने पीछे फीचर्स में देखा कि अल्ट्रासाउंड की जो वेव लेंथ है वो बहुत कम होती है। तो वेव लेंथ कम होने की वजह से इनकी पेनिट्रेशन, यानी किसी चीज़ में एब्जॉर्ब होने की जो सलाहियत है वो काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से ये इंसानी जिस्म में इजीली दाखिल हो सकती हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती हैं। अब जब अल्ट्रासाउंड को इंसानी बॉडी में दाखिल किया जाता है तो इंसानी जिस्म के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें से बाज़ हिस्सों में से तो ये गुजर के पास हो जाती हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ से ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, टकरा के वहाँ से वापस आ जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं। जब वो अल्ट्रासाउंड वेव्स वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं तो हम उनको एम्पलीफाई कर लेते हैं और उनका इमेज हम एक स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे हासिल कर लेते हैं। और वो जो इमेज है वो बेसिकली उस हिस्से का होता है जिस हिस्से से अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आ रही होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है ये किडनी यानी गुर्दों के ऊपर एक्सपोज की जा रही है। तो गुर्दों से ये टकरा के ये वापस आएगी, तो यूं आपको एक राइट किडनी का एक इमेज जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। और डॉक्टर्स इसको देख के काफ़ी इजीली ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इंसानी जिस्म के फलां इंटरनल ऑर्गन में कौन सी एलिमेंट है, कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इसका तरीक़ाकार होता है जिसको हम यूज़ करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट, इमेज ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे गले में मौजूद होते हैं, ये गर्दन के एरिए में, ये आप जैसे देख सकते हैं, इनको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। बाज़ औक़ात ये थायराइड ग्लैंड काफ़ी बढ़ भी जाते हैं या इनमें किसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो हमने इनको भी देखना है। तो इनको भी आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी मेथड के ज़रिए से इनका इमेज भी आप हासिल कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इनमें किस किस्म की प्रॉब्लम है। तो थायराइड ग्लैंड को भी चेक करने के लिए, उनका इमेज हासिल करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मेडिकल डायग्नोसिस में कितनी हेल्पफुल है अल्ट्रासाउंड, यानी कि वो इंटरनल ऑर्गन्स जिनको बाहर से देखना मुमकिन नहीं है उनका इमेज हम हासिल कर सकते हैं। और ज़ाहिर है जब उनका इमेज हमारे सामने होगा तो हम उसका इलाज भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट का जो फील्ड है, इसमें अल्ट्रासाउंड्स किस तरह से मददगार साबित होती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल डायग्नोसिस एक अलग फील्ड है और मेडिकल ट्रीटमेंट एक अलग फील्ड है। ठीक है,
ट्रीटमेंट फील्ड में आप किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं या उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड हैरान कुन हद तक यहाँ पे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि डायग्नोसिस के साथ साथ ये बहुत सी बीमारियों को ट्रीट करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। देखते हैं कि इसके क्या क्या इसमें यूजेस हैं। सबसे पहले, रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन आर्टरीज। हमारी आर्टरीज में बाज औकात जो ब्लड है वो काफ़ी थिक होने की वजह से, काफ़ी विस्कस होने की वजह से वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, एक जगह पे जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज में से जो ब्लड सर्कुलेशन है या जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है या स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये आर्टरी वाल है और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये आपको एक आर्टरी अंदर से उसका इंटरनल व्यू दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल है, इसमें से इजीली ब्लड जो है वो फ्लो करके गुजर सकेगा। लेकिन ये जो आपको राइट साइड पे एक डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आप देखें कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये ब्लड क्लॉट हो चुका है, यहाँ पे ये ब्लड जम चुका है। ब्लड का क्लॉट होना हमारे लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो ऐसी जगहों पे क्लॉट हो जाएगा जहाँ पे उसको क्लॉट नहीं होना चाहिए था। यानी अगर ये यहाँ पे क्लॉट हो जाता है तो यहाँ से ब्लड के ये जो सेल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये यहाँ से इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे, यूं जो आर्टरी है वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल क्या है। अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, और आपको पता है कि साउंड वेव जिस चीज़ के साथ टकराएंगी, जिस चीज़ के साथ भी टकराएंगी वो चीज़ भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज होने का मतलब ये है कि वो एक सेकंड में, जस्ट इन 1 सेकंड, 20,000 वाइब्रेशन पूरी कर रही है। अंदाजा लगाएं कि इसकी वाइब्रेशन कितनी तेज हो रही होती है, और जब ये अल्ट्रासाउंड किसी चीज के साथ टकराएंगी तो वो चीज भी फिर इतनी स्पीड से ही, इतनी फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। दूसरा असूल आप याद रखें कि जब भी कोई चीज़ काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करती है तो बाज़ औक़ात वो चीज़ टूटना शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देखें कि बाज़ औक़ात किसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से हमारी खिड़की के शीशे तक टूट जाते हैं या वो क्रैक हो जाते हैं, तो ये सिर्फ वाइब्रेशन की शिद्दत की वजह से ऐसा होता है। तो ये दोनों असूल बेटा आपने जहन में रखने हैं, और अब आप बात को इजीली समझ जाएंगे। होता यह है कि हम ब्लड क्लॉट की जगह पे अल्ट्रासाउंड को एक्सपोज करवाते हैं, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड आपने यहाँ पे एक्सपोज करवाई, जैसी अल्ट्रासाउंड ये क्लॉट के साथ टकराएंगी तो ये जो क्लॉट है इसके अंदर भी एक वाइब्रेशन की कैफियत पैदा हो जाएगी, और इस वाइब्रेशन की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड होगी, यानी टूटना शुरू हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, और फिर ये यहाँ से इजीली आगे की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपकी जो आर्टरी जो ब्लॉक हुई हुई थी, जिसमें ब्लड का फ्लो रुका हुआ था, वो इजीली अब जारी हो जाएगा दोबारा से। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ब्लड क्लॉट को रिमूव करना कितना ही आसान हो चुका है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी गुर्दे की जो पथरी है। बाज़ औक़ात हमारे गुर्दों में एक यहाँ पे किडनी स्टोन जो आपको नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी एक तकलीफ देह बीमारी होती है किडनी स्टोन्स। अब गुर्दों की पथरी को रिमूव करने के जो शुरू में अगर आप पुराने मेथड्स पे बात करें तो वो काफ़ी तकलीफ दे होते थे, जिनमें सर्जिकल मेथड यूज़ किए जाते थे। लेकिन आज अल्ट्रासाउंड की मदद से विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी पेन, आप इजीली किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। और इसको रिमूव करने का असूल वही है कि जब अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये आपको अल्ट्रासाउंड वेव्स नज़र आ रही हैं, जब ये एक्सपोज की जाती हैं स्टोन वाली जगह पे, तो ये स्टोन के ऊपर जब फॉल करेंगी, उसके साथ टकराएंगी, तो वो जो स्टोन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। उसकी वाइब्रेशन इतनी इंटेंस हो जाएगी कि वो टूटना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा,
और यूं किडनी स्टोन इजीली रिमूव हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ प्लेक ऑन टीथ, प्लेक का मतलब होता है इस किस्म की जो ये आपको एक तय नज़र आ रही है, एक पिलाहट की तय नज़र आ रही है जो कि हमारे दांतों के अमूमन अंदर वाली साइड पे लाजमी होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जब अपने दांत ब्रश करते हैं तो वो तो सामने से हो जाते हैं, लेकिन उनकी बैक साइड पे ये जो पिलाहट है और ये जो प्लेक आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक तय जम जाती है यहाँ पे, ख़ास तौर पे इनकी जड़ों के करीब करीब, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसको रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का ही इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल दोबारा से वही असूल है कि जब अल्ट्रासाउंड वेव इनके साथ टकराती हैं तो ये भी इंटेंस वाइब्रेशन की वजह से टूटना शुरू हो जाती है और वहाँ से ये रिमूव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में। स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन ना सिर्फ आज मेडिकल फील्ड में है बल्कि टेक्निकल फील्ड में भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस देखने में आते हैं। यानी अल्ट्रासाउंड को आप इंजीनियरिंग फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में भी बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इनके टेक्निकल यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसको हम सोनार SONAR भी कहते हैं। ये एक एब्रीविएशन है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका मतलब है। अब ये होता क्या है, इसको हम जरा यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जिस तरीके की मदद से हम डेप्थ ऑफ ओशन यानी समंदर की गहराई को फाइंड आउट कर सकते हैं, समंदर के अंदर उतरे बगैर, यानी समंदर की तह तक आप पहुंचे बगैर आप उसकी गहराई ऊपर रहते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीका ये है कि सबसे पहले एक ट्रांसमीटर के ज़रिए से, ये आपके पास एक ट्रांसमीटर होता है जिसका काम है कि ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को सेंड करे सी बेड की तरफ या समंदर की तह की तरफ। तो ये देखें, ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं ये अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं जो कि समंदर की तह की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इनको हम सेंड करेंगे। थोड़ी देर के बाद ये अल्ट्रासाउंड वेव यहाँ से समंदर की तह के साथ टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके ये सीधी ऊपर की तरफ आएंगी। ठीक है, वापस आएंगी। तो वापस आने में इनको कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड होगा। फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि 5 सेकंड्स लग गए इस साउंड को टकरा के वापस ऊपर तक आने में। हम कहते हैं इसको 5 सेकंड जो है वो स्पेंड हुए। ठीक है, अब हमने करना ये है कि 5 सेकंड का हाफ कर लेना है, क्योंकि ये जो आपके पास साउंड ने जो वेव्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो 2 टाइम्स किया था, एक दफ़ा नीचे जाने में और एक दफ़ा ऊपर आने में। तो हमें सिर्फ एक साइड का टाइम निकालना है कि वो एक साइड में कितना टाइम लेगी, तो इसका हम हाफ करेंगे। जब आप इसका हाफ कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2.5। ठीक है, हम लिख लेते हैं 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो 2.5 सेकेंड्स टाइम हासिल करने के बाद अब हमने चूंकि यहाँ यानी इस शिप से लेके सी बेड तक का डिस्टेंस निकालना है और वही डिस्टेंस बेसिकली डेप्थ कहलाएगा। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम जस्ट एक फार्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू VT, ये बड़ा पुराना फार्मूला है जी, 9th लेवल से आप इसको सीखते आए हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमने डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर में कितनी होती है। तो अमूमन याद रखें कि नॉर्मली स्पीड ऑफ साउंड समंदर के पानी में होती है जी 1531 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड सी वाटर में, लेकिन सी वाटर में ये स्पीड ऑफ साउंड वेरी भी करती है, क्योंकि सी वाटर का टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी वगैरह, ये हर एक चीज़ उसमें मैटर करती है। तो ये एक नॉर्मल सी मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे लिख के दी है, ये आप यहाँ पे पुट करेंगे और टी की वैल्यू आपने चूंकि फाइंड कर ली थी उसको पुट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा और ये डिस्टेंस दरअसल डेप्थ ऑफ ओशन होगी। ठीक है, तो उसमें से आपने देखा कि डेप्थ ऑफ ओशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है जी डिटेक्टिंग द क्रैक्स इन हैवी मशीनरीज। डिटेक्टिंग द क्रैक्स ऑन हैवी मशीनरीज।
इसको हम देखते हैं इसके बाद जी। स्टूडेंट्स, आप ये देखते हैं कि बहुत सारी मशीनरीज ऐसी होती हैं कि जिनमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनमें बाज़ औक़ात अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेयर पार्ट क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको ट्रेस करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। काफ़ी ज़्यादा ये हेक्टिक काम है कि आप इतनी बड़ी मशीन में से एक छोटा सा पुर्जा वो ढूंढें कि जो क्रैक हुआ था। तो यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड हमारी मदद करती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स को जब हम एक्सपोज करते हैं तो वो मशीनरी के हर पार्ट में से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं और मॉनिटर स्क्रीन पे एक इमेज हमें प्रोवाइड करती हैं। जब आप उस मॉनिटर स्क्रीन को आप ऑब्जर्व करते रहेंगे, जिस जगह पे क्रैक वाला स्पेयर पार्ट होगा आपको वो नज़र आ जाएगा। और बाज़ मशीनरीज में अलार्म सिस्टम होता है, जैसे ही क्रैक वाली जगह से वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी तो फौरन अलार्म जनरेट हो जाएगा या रेड लाइट ब्लिंक करेगी। तो यूं देखने वाले को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़लाँ हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो सिर्फ उसी हिस्से को जाके चेक करेगा, बाकी हिस्से को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था जी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन टेक्निकल फील्ड। इसके बाद डोमेस्टिक यूजेस भी हैं जो कि एक जनरल यूजेस हम कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स इन वाटर। ठीक है, पानी में से बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह को रिमूव करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होती हैं जी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड काफ़ी एनर्जेटिक हैं और इनकी जो एनर्जी है वो ये बैक्टीरिया और ये जर्म्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम जब अल्ट्रासाउंड वेव्स को वाटर के साथ एक्सपोज करते हैं तो फौरन वो जर्म्स सारे रिमूव हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो यूं हम पानी में से कंटेमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली आज कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।